Aditya, Yes, Billy. when will this start? About 2 minutes. Good afternoon, everyone. I hope you all are doing well. Myself, Aditya Agarwal, a student guide here at the Career Council SCS. I am excited to welcome you to this eagerly awaited session where we will help you for our upcoming placement season, answer all your questions regarding data science and data analytics field, and help you plan your career. Before we dive in, let me give you a quick overview of what the Career Council is all about. At the Career Council, our mission is to support students like you in navigating your career journey through a range of resources, programs, and sessions like acing placements for placement guidance and acing internship for securing valuable internships. Other initiatives include intern diaries, placement diaries, career bootcamp, and AMA sessions. Our today's session is part of a series Acing Placements. For today's session, we are delighted to have three of our seniors, Rahul Padivaya, who is placed in Marilytics, Sneha Jadidi, who is placed in Tiger Analytics, and Dheeraj Bhaiya, who is placed in Flexo. Now, I would like to request all of our guests to tell you about yourself to our audience. Hello. Everyone, I'm Sneha. I have also been in some of the clubs during my college. Tiger Analytics. दीदी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. Audible? दीदी आपकी साइड से आवाज ब्रेक हो रही है. Hello. Now you are audible. Your voice is not coming. Mic is off. Um, we can start the session, I guess. I'd like to point out one fact, if I'm audible. Aditya, your background noise is a bit loud. Can you hear me? Okay, भैया, I will fix it. Uh-huh.
would request you to tell yourself about our audience. Hello, Bhaiya, am I audible? Hello. Now I would like to hand over the session to a guest for further proceeding of the session. धीरज भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. Okay, so am I audible? Yes, भैया. So, myself, Dheeraj Mohan Patri, and I'm a recent graduate of IIT BHU Chemical Engineering Department, and yeah, ML engineer. I got placed as an ML engineer at FactSoc, and I couldn't join it. But yeah, that's all from my side. And yeah, I've been particularly working in NLP domain lately, and that has been my area of interest. So, any doubts, any queries about like the preparation of ML roles or basically like NLP, everything domain related, you can ask me. So, should I give the whole roadmap or something? Yes, भैया, you can give the whole road. Okay. So, तो अभी right now it's August है, तो काफी it's already into the I think the heat of the placement process. अभी शायद काफी शुरू हो चुका होगा preparation अच्छे से. तो I think I have shared a document, I guess. I've shared a document, I guess, Aditya. Hello, Aditya. Yes, Aditya, भैया, you that are will be shared with the rest. Yeah. So I've given a proper roadmap, a document. जहाँ पे I think right now, I think this is the peak time where you should start preparing for the test, I guess, क्योंकि टेस्ट नहीं निकलेगा तो फिर इंटरव्यू तो बहुत दूर की बात है. तो पहले तो यू विल हैव टू क्लियर द टेस्ट. सो फॉर बेसिकली दो प्रोफाइल्स के लिए काफी अलग होते हैं प्रोसेस. आई थिंक डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के लिए काफी अलग होते हैं प्रोसेस, एंड यू विल हैव टू फोकस ऑन both the sides effectively if you want to focus on both the sides. Baki, if somebody is starting like is thinking of switching to DA or DS profile, to abhi ke liye I would suggest ki please first clear out the DA wale things, and दोनों के I think roadmaps थोड़े से अलग हैं. I would like to tell you about it कि अभी when you are sitting down for test, अभी काफी companies will first take your aptitude test, and aptitude test के साथ ये होता है कि थोड़ा domain specific हो जाता है. जैसे DA के लिए कंसल्टिंग के लिए इनफैक्ट थोड़ा सा वो सिमिलर हो जाता है along the lines. They will ask you aptitude SQL, फिर थोड़ा सा guesstimate भी पूछते हैं कुछ companies. फिर you'll have to prepare for that, and उसके resources मैंने share कर दिए हैं, तो वो I think वो share हो जाएगा बाद में. तो you'll have to prepare for that along the line. And फिर DS के लिए थोड़ा अलग हो जाता है कि तुमको aptitude तो करना ही पड़ेगा obviously, and उसके लिए तुमको फिर you'll have to prepare for the DSA चीजें भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक करना पड़ेगा थोड़ा स्टैक लिंक लिस्ट है ना, थोड़ा सा थोड़ा बेसिक वाले जो एल्गोस थे उसके थोड़े से करने पड़ेंगे तुमको, क्योंकि DSA इतना हार्डकोर नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली, नॉट लाइक SDs, बट थोड़ा सा they will go inside and they will ask you a decent question on DSA. and तो ये होता है अलग थोड़ा. एंड हाँ, तो फॉर DS तुमको बेसिकली ये होगा कि ML में ये होता है कि
बेसिकली अगर तुम न्यूरल नेटवर्क्स थोड़ा सा भी कर लो वो अ, बीए के लिए अच्छा। धीरज भाई, हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, थोड़ा हाँ मतलब सिक्वेंशली चले तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार में पूरा डिलीवर करेंगे तो इट विल बी, मतलब उन उधर से कुछ अगर डाउट होगा तो भी वो क्लियर नहीं हो पाएगा, और फिर कुछ अंदर अंदर गैप रह सकता है। अच्छा तो हाँ अरे नहीं मैं, मतलब अभी हम तीनों पैनल में हैं, तो आई वुड हम्म सजेस्ट कि हम तीनों मतलब एक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम तीनों थोड़ा एक स्ट्रक्चर को फॉलो करें कि हमारा कैसा पार्ट प्रिपरेशन का पार्टन था, एंड रिज्यूमे मेकिंग से लेके इंटरव्यू तक कैसा क्या ओके स्टेजेस रहे थे, ओके तो ओके इट विल बी मेक मोर सेंस टू द पीपल, राइट। ओके 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 क्योंकि इनका टेस्ट चल रहा था तो आई वाज मोर फोकस ऑन द टेस्ट पार्ट माय बैड। तो हाँ। आई वुड से ओके तो रेज्यूमे मेकिंग तो अभी आई थिंक ऑलरेडी हो गया होगा बट प्लीज ट्राई टू हम्म। मेंटेन but as for the resume part, I would say कि please try to include some unique projects for your resume and don't मतलब copy मत कर लेना कहीं से भी उठा के। अगर कर भी रहे हो तो at least try to understand each and every part क्योंकि projects में काफी डिटेल में जाएंगे वो लोग क्योंकि they will just drill your heart मतलब बहुत अंदर तक जाएंगे वो लोग। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी वर्ड लिख दिए रेज्यूमे में and तुम बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड, सो बी रेडी विद इट। अगर तुम खुद बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू, इजी फॉर यू टू मेक इट अंडरस्टैंड। एंड बाकी ट्राई करना कि फॉर डीए डीएस थोड़ा अलग हो जाता है प्रोजेक्ट्स, तो बाकी ट्राई करना कि डीएस के लिए अगर तुम कर रहे हो तो थोड़ा सा थोड़ा सा जाओ एनएलपी सीवी हाँ। okay। आदित्य, तुमने कुछ प्रिपेयर करा है कि मतलब सेशन का क्या फ्लो रहेगा, या फिर ऐसे ही डिलीवर करके हमें जाना है? मैं आपको Have you डिलीवर करना है, उसके बाद ऑडियंस की तरफ से Q&A रहेगा। you have not prepared any structure? मतलब हम तीन पैनल में है तो एक ही बंदा बोलता रहेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके चला जाएगा, यही है? माय बैड थोड़ा नेटवर्क चला। भैया आप सबको ही बोलना है, मतलब लाइक बट आप अपना हाउ? बताओगे और फिर उसके बाद Q&A रहेगा। भैया लाइक अभी धीरज भैया बता रहे हैं, फिर आप और फिर स्नेहा दीदी बता सकते हैं, उसके बाद ऑडियंस की तरफ से जो क्वेश्चंस और उनके डाउट्स रहेंगे वो हम ले लेंगे। I'll धीरज भैया continue मैं हाँ हाँ मैं नेट इंटरनेट चला गया था थोड़ा माय बैड। ओके सो as I was continuing तो try to include for DS profile I would say try to include some NLP and CV थोड़ा explore करके देखो। I don't think अभी भी इतना कुछ वो है rush है अभी भी you can and then I would say as for the preparation tips I would say थोड़ा सा you will have to look out for the aptitude test। उसमें I would say suggest कि CAT के previous year question कर लो, like genuinely वही कर लो क्योंकि वो काफी उसका एक स्टैंडर्ड रहता है, उससे प्लेसमेंट टेस्ट काफी नीचे स्टैंडर्ड में आते हैं। तो जस्ट गो फॉर द कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड जो भी मिलते हैं मॉक कहीं भी मिलता है जस्ट गो फॉर इट एंड बाकी आई वुड से कि जो अपने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है प्लीज आई वुड से मैंने have given you the things I would say हाँ तो I would say कि काफी you'll have to be conceptually clear ML की कहाँ क्या हो रहा है, रिग्रेशन हो गया लॉजिस्टिक्स हो गया, एटलीस्ट इतने बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए एमएल के एंड उसके बाद यू कैन गो फॉर फर्दर थिंग्स। सो उस चीज में देखना कि एमएल के सारे टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें क्योंकि टेस्ट में पूछते हैं जैसे इन्फो एच हो गया पर्टिकुलरली जो काफी थोरली चेक करते हैं तुम्हारे एमएल के कॉन्सेप्ट्स, और अगर तुम नहीं होगे थोड़ा तो तुम बहुत सारे टेस्ट नहीं निकाल पाओगे, तो वैसा रहेगा। एंड as for the coding, I would say कि अभी it's a bit late if you're starting it right now. I would say कि अभी तो
थोड़ा सा ही कर पाओगे तुम लोग, ज्यादा तो कर नहीं पाओगे, बट still you can try and you can try at least cover the basic concepts of जो भी है. And then I would say suggest कि for the placement चीज ये था कि I would say don't get ये होगा intimidated कि तुम्हारे दोस्तों के निकल रहे हैं ना, तुम्हारे नहीं निकल रहे. ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा थोड़ा स्टार्टिंग में कम निकले टेस्ट एंड बाकी का ज्यादा निकले, तो यू माइट फील कि थोड़ा नर्वस हो कि हाँ मेरे दोस्त के निकल रहे, मैं नहीं निकल रहा. डोंट गेट दिस थिंग कि ऐसा होता है ना कि बहुत कंपनीज आते हैं एंड इवेंचुअली सबका निकलना ही है टेस्ट. ठीक है, इफ यू हैव वर्कड हार्ड तो टेस्ट निकलना ही है. इफ यू हैव वर्कड हार्ड तो धीरे धीरे करके यू विल गेट शॉर्टलिस्ट, आराम से आ जाएंगे. देन यू जस्ट नीड टू, एक बार तुम अगर टेस्ट वाला पार्ट क्लियर कर लोगे, ऐसे फॉर मी ऐसा था कि अक्टूबर तक, आई थिंक नवंबर तक मेरे पास भी ज्यादा शॉर्टलिस्ट थे नहीं, क्योंकि हमारा डिसीजन था थोड़ा पिछले साल वाज नॉट सो गुड प्लेसमेंट. बट धीरे धीरे करके आए वो दिसंबर स्टार्टिंग तक काफी शॉर्टलिस्ट आ गए थे. तो देन यू विल हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नवंबर की तरफ. यू विल हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू आल्सो, क्योंकि ऐसा होगा कि तुम अचानक इंटरव्यू के लिए प्रेप नहीं कर सकते, तुमको टाइम चाहिए होगा इंटरव्यू के लिए. सो आई वुड सजेस्ट कि नवंबर मिड से आई गेस स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज. एंड प्लीज मेक श्योर कि तुम हर रेज्यूमे के हर पॉइंट से थरो. बार बार मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी है ये पॉइंट. ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पास 2 शॉर्टलिस्ट हो, बट ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास 3 शॉर्टलिस्ट हो, 2 शॉर्टलिस्ट हो, बहुत कम शॉर्टलिस्ट हो. बट इफ यू आर थरो विद योर रेज्यूमे तो तुम एटलीस्ट तुम्हारा श्योर है कि तुम इंटरव्यू निकाल दोगे. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि इंटरव्यू प्रिपरेशन अच्छे से करो. आधा 1 महीना तो दो उसको प्रॉपरली. ठीक है, एंड इफ यू आर लिटिल बिट की लग रहा है कि तुमको और थोड़ा टाइम चाहिए टेस्ट वेस्ट के लिए, सब के लिए, क्योंकि कुछ कंपनीज काफी लेट आते हैं, अच्छे कंपनीज, तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 15 नवंबर से तो स्टार्ट ही कर दो. एंड जस्ट मेक श्योर कि सारी चीजें तुम्हारी क्लियर है जो भी तुम रेज्यूमे में लिखे हो. एंड हाँ, एंड ये रहेगा कि इंटरव्यू में डोंट गेट, आई वुड से कि डोंट गो बाय दिस थिंग कि तुम्हारा है ना इंटरव्यू तुम दे रहे हो एंड अचानक तुमको थोड़ा सा यू फील कि यू हैव gave a wrong answer and थोड़ा सा inefficient answer दिया, तो don't feel intimidated by that, क्योंकि interview is not it's not end till the, मतलब जब तक इंटरव्यू खत्म नहीं हो जाता ऑफिशियली, इट्स नॉट एंड. तो इंटरव्यू के बीच में भी डोंट गेट नर्वस. अगर तुमको कुछ आ नहीं रहा है तो जस्ट मेक श्योर टू से कि हाँ मतलब ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हैं ऐसे कि जो मैं टच करने वाला हूँ बाद में, आई विल गेट इन टच विद इट प्रॉपरली, बट राइट नाउ आई नो दिस मच, थोड़ा एक आउटलाइन दे देना, ऐसा दे देना. एंड बाकी ट्राई करना कि ज्यादातर क्वेश्चंस तुम आंसर कर दो इंटरव्यू में. इट गिव्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन कि तुमको आता है, तुमने मेहनत किया है, तुम कैपेबल हो इस जॉब के. तो या ऐसा रहता है. एंड या जस्ट एंजॉय द प्रोसेस, क्योंकि हाँ बहुत स्ट्रेसफुल होता है वो प्रोसेस. पूरे 3-4 महीने यू विल फील वेरी स्ट्रेसफुल राइट नाउ. बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा तुमको दिसंबर तक, तुमको बहुत ज्यादा यू विल फील प्रेशराइज. बट या जस्ट एंजॉय द प्रोसेस एंड या इट विल इवेंचुअली बी ओके फॉर यू ऑल. तो यही था मेरे साइड से. एंड बाकी कुछ आई हैव शेयर्ड द रिसोर्सेज, एंड बाकी कुछ स्पेसिफिक डाउट्स यू कैन आस्क मी. Where we will take doubts after or all guests finish their course. Rahul bhaiya, you can start. ओके सो एक्चुअली एसिंग प्लेसमेंट्स का एक स्ट्रक्चर होता है जो हम पहले फॉलो करते थे. आई 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 विल गो लाइक दैट. ठीक है, तो मतलब धीरज भाई ने पूरा मतलब एंड टू एंड बता दिया कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी है. ऐसे देखोगे तो पूरा ज्ञान का पूरा सागर है, बट हमारे पास जो लिमिटेड चीज है वो टाइम है. सो अभी जो 2-3 महीना है तो उसमें हम कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके, ऐसा प्रिपरेशन करें कि मैक्सिमम आउटपुट निकले. तो अभी उसके ऊपर बात करें तो इट विल बी बेटर, राइट. सो थोड़ा ओवरव्यू दे दूं तो अभी मैं मैग्नेटिक्स नाम की कंपनी ज्वाइन किया हूँ जो मुझे कैंपस प्लेसमेंट पे ही मिला था. एंड बिफोर दैट आई हैव डन माय इंटर्नशिप एट जीन मोनेट यूनिवर्सिटी. ये मेरा एक रिसर्च इंटर्नशिप था
फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी में। तो पिछले साल में आते आते जुलाई हो गया था इंटर्नशिप से, सो जुलाई एंड हो गया था। सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम अगस्त ओनली। सो अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीना मैंने प्रिपरेशन करा था। एंड अक्टूबर में काफी टेस्ट होते हैं, तो उस टाइम प्रिपरेशन के लिए कोई टाइम नहीं मिलता है। नवंबर में आप एंड सेम वगैरह रहता है, एंड दिसंबर में आपके इंटरव्यू रहते हैं। तो अभी अगर देखें तो इट्स नॉट वेरी लेट। सो टू स्टार्ट विथ कि मतलब प्रिपरेशन कैसे करना है, तो यू नीड टू गेट क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, कि आपको क्या चाहिए। थोड़ा सा अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत अगर चलोगे तो यू विल बी इन ए गुड पोजीशन। देखो, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंपनियां आती है, बहुत सारी चीजें पूछती है, तो सबके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते इन लिमिटेड टाइम। सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि तुम क्या प्रिपेयर कर रहे हो। देखो, तीनों प्रोफाइल, जो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस एंड जो डीप लर्निंग वाले जो प्रोफाइल्स है, वो तीनों बहुत ही अलग है। एंड ये तीनों तो अलग है, उसके बाद प्रोडक्ट वाली भी प्रोफाइल पूरी अलग है। सबके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत अलग है। तो तीनों प्रोफाइल की अगर बात करें तो पहले डेटा एनालिस्ट आता है। तो इन डेटा एनालिस्ट आप इन द लॉन्ग टर्म आप बिजनेस साइड में जाओगे, डेटा के ऊपर काम करोगे, एसक्यूएल के ऊपर काम करोगे, एंड बिजनेस प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करोगे। सो आपका प्रिपरेशन डेटा एनालिस्ट के लिए ऐसा होना चाहिए कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट बिजनेस एक्यूमेन एंड एसक्यूएल, राइट। सो ये की है डेटा एनालिस्ट का प्रिपरेशन का। देन कम टू डेटा साइंस। तो डेटा साइंस ये थोड़ा बिजनेस एंड टेक के बीच में आता है। तो इसमें आगे जाके आप बिजनेस एंड टेक दोनों के बीच में जो मतलब रोल थोड़ा सा एम्बिगियस रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी रहेगा एज कम्पेयर टू डेटा साइंस। बट इसमें आपको आगे जाके मॉडलिंग करने को मिल सकता है, और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग का स्टफ ज्यादा रहता है। सो इधर आपका जो प्रिपरेशन रहेगा, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर पाइथन, मशीन लर्निंग एंड एसक्यूएल एज वेल। बट इसमें पाइथन एंड मशीन लर्निंग की तगड़ी प्रिपरेशन करनी होगी, एंड एसक्यूएल का थोड़ा ठीक ठाक प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड गोइंग टू द डीप लर्निंग वाले प्रोफाइल, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर विजन या फिर एनएलपी इंजीनियर वगैरह होते हैं, सो बहुत ही कम कंपनी ऐसा आती है जो जिनकी रिक्वायरमेंट ये सब फील्ड्स में रहती है। तो दे नीड वेरी नीश पीपल, दोज हु आर having very strong projects in those required। देखो, हमारे टाइम में तो बहुत ही कम कंपनियां आई थी। अभी कंप्यूटर विजन का बोलोगे तो दो या तीन कंपनियां ही आई थी, और वो भी मतलब ऐसे चुनिंदे लोगों को लेते हैं। सो इफ यू आर अभी मतलब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कोई एक फील्ड के ऊपर, या तो एनएलपी हो गया, या तो कंप्यूटर विजन हो गया, या तो जेन एआई हो गया, देन यू कैन मतलब देन यू कैन गो फॉर इट। और काफी मतलब लक बेस्ड भी रहता है। सो ये मतलब इट इज ए वेरी नीश फील्ड। तो अभी अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो अभी तक, देन यू कांट गो फॉर इट, राइट। सो बाकी बचे दो दो चीजें, डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस। तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं। सो एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है कि आगे जाके कैसे होता है इन द लॉन्ग टर्म, एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन दीज टू प्रोफाइल्स। अभी बात करते हैं कि अभी 3 महीना जो बचा है उसमें कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्टिंग विथ रिज्यूमे। तो अभी जैसे फिलहाल मुझे पता चला है कि रिज्यूमे वेरिफिकेशन का जो फील्ड है वो क्लोज कर दिए गए हैं। सो वेरीफाइड फील्ड्स में जो बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है वो होता है आपका इंटर्नशिप, पीयूआर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर उतना ज्यादा देखते नहीं है कंपनियां, बट इंटर्नशिप एंड आपका जो पीयूआर होता है वो डेटा एनालिस्ट, पीयूआर
जो होता है वो डेटा एनालिस्ट एंड कंसल्टिंग में कंपनियां देखती है कि आपका कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है या फिर आपने कुछ लीडरशिप वगैरह लिया है, एक्टिविटी करी है क्या। सो अभी तो उसको चेंज नहीं कर सकते, जो आपने डाल दिया होगा वो वेरीफाई हो गया होगा। बट कमिंग टू कि अभी क्या चेंज कर सकते हो, अभी आप चेंज कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट्स। आप कभी भी प्रोजेक्ट्स वगैरह डाल सकते हो, प्रोजेक्ट फील्ड्स अपडेट कर सकते हो। सो डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंस के लिए मोस्टली सिमिलर प्रोजेक्ट्स ही रखते हैं लोग इन कॉलेज की। मशीन लर्निंग के कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए, जैसे अभी मेरे अगर रिज्यूमे में देखो तो आई हैव ए रिग्रेशन प्रोजेक्ट एंड एक प्रेडिक्शन वाला प्रोजेक्ट था, क्लासिफिकेशन वाला। एंड एक ईडीए का प्रोजेक्ट डाल सकते हो या फिर आप एसक्यूएल का प्रोजेक्ट डाल सकते हो। थोड़ा अगर बिजनेस साइड का और डालना है तो यू कैन एड अप सम केस स्टडीज इनटू योर प्रोजेक्ट, अगर कुछ किए हो तो। बाकी अगर अभी तक कुछ भी प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाए हो, सो यू कैन मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ते में एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। केस स्टडी के लिए आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा थोड़ा मतलब थोड़ा बिजनेस प्रॉब्लम्स आप ढूंढने की कोशिश करो। यू कैन गेट दोज प्रॉब्लम्स फ्रॉम साइट्स लाइक अनस्टॉप या फिर कहीं पर कुछ कंपटीशन वगैरह जो होते हैं, तो उसमें स्टेज 2 स्टेज 3 में बिजनेस प्रॉब्लम वो रिलीज करते हैं। देन यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन हैव योर प्रोजेक्ट केस स्टडी का। और बाकी मशीन लर्निंग का जो प्रोजेक्ट बनाओगे तो यू कैन गो टू केगल, एंड केगल में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल जाएंगे। यू कैन प्रैक्टिस इन केगल ऑल्सो, एंड कोई एक डेटा सेट डाउनलोड करके डेटा सेट से आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। 3 चीजों का प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग में अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये 3 तरह के प्रोजेक्ट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इजी, कम टाइम पे बना सकते हो। एक रिग्रेशन, एक क्लासिफिकेशन का, एक अच्छा खासा ईडीए का। क्योंकि ये तीनों जनरलिस्टिक फील्ड में आते हैं, तो आप कोई भी कंपनी में अगर अप्लाई कर रहे हो तो उनको ये फील्ड्स में रिक्वायरमेंट रहती है, एंड ये आप इजीली सीख सकते हो। अगर आप ज्यादा हाई फाई की ओर जाओगे देन यू यू हैव टू इन्वेस्ट ए लॉट ऑफ टाइम। मान लो कि आप रिकमेंडेशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो रिकमेंडेशन सिस्टम को समझने के लिए, उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, एंड आप बना भी दोगे, बट मैक्सिमम ऑफ द कंपनी में रिकमेंडेशन सिस्टम की जरूरत नहीं होती। दे नीड पीपल हु आर गुड एट एनालाइजिंग डेटा। तो एनालाइजिंग डेटा के लिए दे विल नीड पीपल हु आर गुड एट एसक्यूएल और हु आर गुड एट पांडास, मतलब डेटा को कैसे रीड कर पा रहे हो, डेटा को समझ पा रहे हो, डेटा को कैसे विजुअलाइज कर पा रहे हो। सो ये तीनों मतलब ये 3 तरीके के प्रोजेक्ट डालो। थोड़े ऐसा मत डाल देना कि सब एक ही प्रोजेक्ट छाप रहे हैं, तो थोड़े अपने दिमाग से डेटा सेट उठाना, अपने दिमाग से खेलना। देन यू कैन बी यूनिक एंड आपका रिज्यूमे यूनिक होगा। कोई प्रोजेक्ट कोई प्रोजेक्ट कितना अलग है, इससे ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना डेप्थ तक गए हो प्रोजेक्ट में। सो फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड जो भी आप सीख रहे हो वही सब चीजों को रेज्यूमे में मेंशन करो कि कैसे। एंड रेज्यूमे में ऐसे 3 पॉइंटर में मेंशन करो कि आपने प्रोजेक्ट क्यों बनाया। देन सेकंड पॉइंट में व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड, एंड क्या क्या अप्रोच लिया था आप लोगों ने टू टैकल दो चैलेंजेस, कैसे आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच किया था। देन थर्ड स्टेप में आप अपना रिजल्ट बताओ कि आपने जो क्यों किया था उससे आपके क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट। सो इन दिस वे यू कैन राइट योर रिज्यूमेस, एंड उससे अपना भी काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। जैसे ये 3 पॉइंटर में आप अपना प्रोजेक्ट को लिखोगे, जो भी आपने 1-2 हफ्ते में काम किया हो। सो इट्स ऑल अबाउट रिज्यूमे वाला पार्ट हो गया। थोड़ा रिज्यूमे में क्या होता है कि थोड़ा स्पेसिंग एंड
स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कुछ लोगों के हो रहते हैं। अभी मेरे को बहुत सारे जूनियर्स ने अप्रोच किया था रिज्यूमे वेरिफिकेशन के लिए, तो कॉमन मिस्टेक्स ऐसे ही होते हैं कि कहीं पर एक चीज को बोल्ड कर दिया तो उसके बाद जो स्पेस है वो हट जाता है, तो उसको डालना। तो ऐसे छोटे छोटे चीजों का थोड़ा ध्यान रखना रिज्यूमे बनाते टाइम। और रिज्यूमे बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम दो, 3-4 रिज्यूमे बनाओ अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए। टीपीसी आपको 10 रिज्यूमे का कोटा देता है। 10 रिज्यूमे का कोटा तुरंत मत खत्म है। 3 रेज्यूमेस या फिर 4 रेज्यूमेस पर 4 डिफरेंट प्रोफाइल पहले। बाकी बाद में कुछ कुछ चेंजेस आपको लगेंगे, कुछ कुछ थोड़ा चेंज करना होगा तो आप कर सकते। और वो फील्ड्स में भी आपका 50 फील्ड का लिमिट होता है। तो अभी जो भी डाल रहे हो भी रिज्यूमे में, तो उसको पूरा का पूरा चेक करके, एक जब रिज्यूमे आप पूरा का पूरा प्रोसेस करके उसको पोर्टल से कंपनी वाले साइट में जाता है, तो उस टाइम पूरा का पूरा अच्छे से वेरीफाई करके डालना है, ठीक है। तो रिज्यूमे का पार्ट हो गया। देन कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 2 ही महीना बचा है। सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक कि आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो। एंड आप जो भी प्रिपेयर करोगे, आप उसका एक कंपटीशन होगा, आपको वो कंपटीशन को बीट करना रहेगा। सो मैक्सिमम, अभी मतलब मैक्सिमम का ही बात करूंगा मैं, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम आउटपुट। तो उसके लिए एक फनल, मतलब ये चीज देखो कि जो कंपनी आती है, मतलब 100 कंपनी आई, you can apply for only 50 companies. So you need to prepare for that 50 companies। और भी स्पेसिफिक करें तो उस 50 में से आप जो 15-20 आपका मतलब मेन इंटरेस्ट होगा उसके लिए प्रिपेयर करोगे। सो ये जो फाइनल को अगर देखोगे उसी हिसाब से तुम्हारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अभी धीरज भाई ने बहुत सारे चीज बता दिया, बहुत सारे स्किल सेट बता दिया। प्रोग्रामिंग बताया उसने, एसक्यूएल बताया, एप्टीट्यूड बताया, मशीन लर्निंग बताया, एनएलपी बताया, बहुत सारी चीज बता दी। बट प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो 2 महीने के टाइम में मतलब सारा चीज नहीं खत्म किया जा सकता। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मतलब कौन सा चीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एंड आपकी कैपेबिलिटी कितनी है टू बीट द कंपटीशन, आपको क्या प्रिपरेशन चाहिए, एंड आप वो प्रिपरेशन कर पाओ। सो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सो अभी देखो कि द मैक्सिमम आउटपुट माय फ्रेंड्स एंड मी स्पेशली विथ मिनिमम एफर्ट वी गॉट इन एप्टीट्यूड। मतलब 50 या फिर 80 जो भी एनालिस्ट की कंपनियां आएंगी, उसमें से 70%, 60 to 70% कंपनियां यही एप्टीट्यूड में ही टेस्ट करेगी, एंड एप्टीट्यूड स्किल के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट निकालेगी। सो ऑन द टॉप प्रायोरिटी यू शुड हैव एप्टीट्यूड। एंड एप्टीट्यूड में भी अगर देखोगे तो 4 चीजें होती है, क्वांट, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्बल एप्टीट्यूड, और एक लॉजिकल रीजनिंग। सो ये चारों में भी क्वांट का वेटेज सबसे ज्यादा है। सो अगर आप लोगों ने क्वांट को तगड़ा किया, देन यू कैन एक्सपेक्ट, मतलब आप काफी कंपनी निकाल सकते हो, एंड मतलब कंपटीशन को बीट करने का आप कर सकते हो आप कम टाइम। एंड एप्टीट्यूड के बाद जो मतलब जो मैक्सिमम कंपनियां आती है उसके मतलब 50% ऑफ द कंपनीज दे फोकस ऑन एसक्यूएल। क्योंकि आप उधर से तो निकल के आ गए कंपनी में, मतलब प्लेसमेंट के बाद कंपनी ज्वाइन करोगे तो कंपनी में क्या काम होता है? कंपनी में यही काम होता है डेटा एनालिसिस का, कि डेटा एक्सट्रैक्ट करो, ट्रांसफॉर्म करो, एंड उससे कुछ इनसाइट। सो यू नीड टू बी वेरी गुड एट एसक्यूएल एंड एनालाइजिंग डेटा। तो एसक्यूएल की तगड़ी प्रैक्टिस करो। एंड जैसे कम टाइम तो इसमें आप अगर बड़े बड़े कोर्सेज करने जाओगे, वीडियो वगैरह देखने, तो इट विल नॉट मच बेनिफिट यू। यू नीड टू बी वेरी गुड, मतलब प्रैक्टिस करके ही आप वेरी गुड बनोगे। सो यू नीड ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। गो टू हैकर रैंक, लीड कोड, इंटरव्यू बिट, ये 3 साइट है। ये 3 साइट पे जितने क्वेश्चन है, अगर उतने लगा लिए तो यू कैन डू एनी टाइप ऑफ एसक्यूएल क्वेश्चन, जो भी इंटरव्यू या फिर तुम्हारे प्लेसमेंट टेस्ट में पूछते, यू कैन डू इट। सो
ये दो चीजें तो मस्ट है, एप्टीट्यूड करो, एसक्यूएल करो। इससे मैक्सिमम ऑफ द कंपनी निकाल सकते हो, इंटरव्यू निकाल सकते हो, टेस्ट निकाल सकते हो। देखो मशीन लर्निंग, हाँ डीएसए की अगर बात करें तो डेटा एनालिस्ट के लिए डीएसए जरूरी नहीं है। अगर आपको अगर बेसिक्स नहीं पता डीएसए की, आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो वरी करने की कोई बात नहीं, यू कैन स्किप इट। क्योंकि डेटा साइंस की कुछ ही चुनिंदे कंपनी है, 5-7 कंपनी एसयू की डेटा साइंस की, जो डीएसए पूछती है। अभी नाम भी ले तो वो जो 5-7 कंपनी है डीएसए के बेसिस पे, वो अच्छे खासे प्रोग्रामर ही लेती है, और ब्रांच स्पेसिफिक भी हो जाता है उनके लिए कि वो कंप्यूटर साइंस वालों को ही लेंगी। सो आई वुड सजेस्ट कि मतलब अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपका टच नहीं है, यू आर नॉट वेरी गुड एट डीएसए और सीटी, देन इट्स नॉट द टाइम कि मतलब आप उसमें टाइम वेस्ट करो सीखने में। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है देन यू कैन गो फॉर इट, बट इट्स नॉट ए स्मार्ट मूव। देन डीएसए के बाद आता है मशीन लर्निंग। ये कुछ किसी का डाउट है क्या? ओके, बैकग्राउंड नॉइस था। सो मशीन लर्निंग, भैया तो आई मशीन लर्निंग में क्या आएगी, मशीन लर्निंग भी एक समंदर ही है पूरा। सो सारा का सारा चीज, हाँ भैया आई हैव अ रिक्वेस्ट, please wrap up in 5 minutes as Sneha Didi will also give guidance and we will need to take Q&A also. ओके ओके। सो कहाँ पर थे, मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग में भी काफी स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं, वो स्पेसिफिक टॉपिक्स को कवर कर, एंड ये चार चीज में मेजरली आप जो भी पढ़ते हो इट्स ए, तो और उधर नहीं जाएंगे। वी विल देन कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट। आई विल सजेस्ट मतलब अक्टूबर लास्ट वीक तक वगैरह आपका अप्रोच कर सकते हो और मोबाइल। एंड इंटरव्यू के लिए कुछ टॉपिक्स है, जैसे पजल हो गया, तो पजल का अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लो। गेस्टिमेट हो गया, और बिजनेस एक्यूमेन के लिए बीएचयू बिज क्लब का जो केस बुक आता है वो उठा लो, या फिर आईआईएम बेंगलोर का केस बुक उठा लो। उसमें आपको प्रोडक्ट का नहीं, सो उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस, मार्केट एंट्री, ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स वगैरह मिल जाएंगे, तो उसको प्रैक्टिस कर लो। एंड इससे काफी अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी रिज्यूमे का, जैसे रिज्यूमे प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हो या फिर नहीं बनाए, देन आल्सो प्रिपेयर फॉर योर प्रोजेक्ट, कि मतलब प्रोजेक्ट में अगर कोई अगर पूछता है तो यू कैन बी एबल टू कवर ऑल द डिटेल्स। कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो यू कैन बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। तो उतना अच्छा प्रिपरेशन तो करना ही है प्रोजेक्ट का। सो it's all well, about the preparation. Baki Sneha can tell her story or how she prepared. Hello everyone. My case, during means I was exploring for many means during times. At the start of the intern period, I was Di, your looking voice is at very low. सही आ रही है क्या अभी? हेलो। Now fine. So during intern times, I was initially looking at the courses related to probability, statistic, and all those basic stuff, but it didn't work during that time. Although it helped me during placements, all those studies.
Then after sometimes I started for preparing for SDA, and for that means I uh, look into coding stuffs and C++, all those things. Uh, then during summertime means in the back of the mind, like I was having interest to learn about machine learning. Okay, so during that time I did two things. Um First is uh, I enrolled in one training program so that I can show it in my show it to professors that yes, I have done some training stuffs regarding machine learning, in which to the point things were there regarding basic probability, linear regression, classification, and all those stuffs. Plus, while practicing for uh, one hackathon, there was one hackathon by Doctree for identifying the healthcare profession. So I also participated in that to apply my skills practically, and I also needed some intern to show. So there was means some Spark Foundation projects in which means I did project related to stock price prediction, which has some parts of sentimental analysis also. So in my journey, I just focus on like what I like to do, and I keep, so my summer vacation was majorly regarding doing different kind of projects. And before summer, like during Jan time, I had a good, not much good, means little bit of coding knowledge as well. Uh, then when um, my resume making time came, like I understood, yeah, means the preparation which I have gone so far is aligned toward um, data science more specifically. So means I started to prepare according to that. I start means someone mentioned SQL 50, so I did means this is a good means of you will get maximum information about SQL, but that's not enough actually. Means you need to do little bit more practice. So that means some of the companies are asking very complicated queries. So you should see some of the hard problems of hard or medium problems of HackerRank or any other platform to gain more knowledge, and to there are various cheat sheet available to know about SQL queries and all those things. Uh, then uh, during my preparation, like I was little weak at aptitude, so means the preparation for DADS profile depends from person to person. Like some people have edge on aptitude, some people have edge on different topics. So means I was more coding oriented, and also my like from similar racing placements or those session means uh, I even got to know that doing coding in Python is little bit more um, uh, in favor with for data science roles. So I even switched my coding practice from C++ to Python. uh, then I was maximum more my maximum day segment during preparation stage means maximum time was invested in doing problems related to coding, and then some part of segments was uh, invested in doing SQL questions. And also, like, we can't ignore aptitude because majority of company ask this. And if you are not if you don't practice it enough, like you will face difficulty in solving them, especially some logical reasoning questions, like they are time consumers. Means कर लेंगे but it takes lots of time. So उसको मैं, if you know that how to do with the practice, that would be good. And to practice means I have even mentioned in resources like textbook was one platform. Then one there was one guide by if you are just starting to know what are the topics in aptitude and all those things. So
there is one guide by Coding Ninjas, like topics which are covered in aptitude that you can do. Then I asked to my seniors that what are their approaches. So like if you are you know, by giving test or something, you will know that yeah, this part of aptitude is weaker for me and it is asked so many times. So just you can there are means very in some of the drives there are modules available for different topics, maybe some time speed related topics you are uncomfortable with. So uh, go to that topic, select some random 5 to 4 question, practice them. So these are some approaches to practice the question related to that. And for resume, like previously both of them also said, like write everything honestly. like तुम बहुत सारे टेस्ट वगैरह निकाल दिए बट एट द एंड या बहुत शॉर्ट लिस्ट निकाल दी, बट remember that at the end you have to give the interview as well. So keeping that thing in mind, write the points properly. Yes, means we will share you the resume. uh, so back to keep the means there is a structure to write the points and write things honestly. फिर write the insights which you gathered by all the analysis. Like if you found some trend that yeah means some competitors are, I mean in stock price means I wrote that something, or I found that during COVID period the stock prices were more. So if you found some result or insight, some useful insights like that, um, try to cover those also in that. Um, then yeah, means the spectrum to cover the topics are too large for data. Means some companies also go to depth to mathematics. They ask calculus related questions as well, some of the companies. So from person means some might be having edge over those topics, so they it can benefit to them. So uh, I would suggest like try to see at least that what's happening in the other topics as well, like the the preparation spectrum for like you the neural network. So there are questions related to neural networks and it is not too complicated topic. So you can just see that what are neurons, what is hidden layers, and some simple things related to that. So that if some question, some basic means plus minus related question also comes, so you can just, if you know the concept, you will able to do that thing. So try to cover topics and concepts like that. That's, I guess, summary. Means I can answer more if some doubts or something would come. Okay, now we will move on to questions. Our audience will ask you questions. From audience, if There are anyone is already having many doubts, questions they can here open. in chat. We will take them also, and if anyone wants to ask now, they can open their mic and ask. Like there was question related DS and ML role resume. So also means like what's in my company, it's like hierarchy. First means I would work as analyst, then after the time means I will get promotion as data scientist. So means even if you see some roles or like this is analyst role, I am preparing for data science, why should I apply for this? I mean this kind of mindset I had it during my preparation little bit. So don't think like that. Means the role or the work which all D or DS whatever the role is mentioned, the work which you will do there would be approximately same. Means analyst people might also do some coding and pandas manipulation, and SQL will write some queries, and similarly the data science people will also look into the business context and all those things. So apply for all kind of company, whether it is D or DS. Means at the end the thing which you will do that will uh, uh, fetch out the uh, analysis from that. And also like my I thought that
maximum projects in my resume was related to ML. In Javis, I applied for both ML roles and one business analyst role. But they shortlisted me for business analyst role for interviews and all those things. So that even happens. So whether your resume is for DS or ML or whatever, you think it will create similar impact to company only. It will depend upon your performance in scores in test and how will you perform in your interviews and all those things. I would like to suggest one thing extra that if you are preparing for like only DA, if I say only DA and yeah, only for DS, you are not preparing for the other profile, then I would still suggest keep applying for companies. ऐसा होता है कि थोड़ा मतलब फाइन लाइन होता है अभी मतलब इट्स नॉट वेरी मच स्पेसिफाइड कि क्या तुमको कुछ बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो स्पेसिफाइड नहीं करते हैं कि मतलब क्या एग्जैक्टली चाहिए उनको क्योंकि थोड़ा सा वो फाइन लाइन मतलब डिफरेंस नहीं पता चलता है तो इफ यू हैव डीए रिज्यूमे ऐसा नहीं है कि तुम डीएस के लिए नहीं बैठोगे या फिर ऐसा नहीं है कि तुम एमएल प्रोफाइल्स के लिए नहीं बैठोगे ट्राई योर बेस्ट रेज्यूमे तुम दो अपना एप्लीकेशन भरो एंड अगर आ गया टेस्ट एंड टेस्ट का शॉर्टलिस्ट आ गया अगर तो इट्स वेरी गुड तुम दो एंड जस्ट गिव योर बेस्ट ऐसा नहीं है कि मतलब ठीक है मेरा रिज्यूमे थोड़ा वीक होगा शायद डीएस के लिए मैं नहीं भर रहा हूँ या फिर एमएल के लिए शायद मेरे पास है नहीं उतना वो ऐसा कुछ नहीं है जस्ट डू इट क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि रेज्यूमेस बहुत ऐसे क्विकली स्कैन किया जाता है फॉर शॉर्टलिस्ट और एनीथिंग तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा क्लिक हो जाए उस प्रोफाइल के लिए सो नेसेसरी नहीं है तुम्हारा प्रिपरेशन उसी हिसाब से होना चाहिए तो जस्ट ट्राई मतलब 50 कंपनी है तो मैं बोल रहा हूँ कि 50 कंपनी मोर देन एनफ होता है तुमको एक पॉइंट पे मेरा भी 50 नहीं हो पाया था लास्ट तक मेरा 50 कंप्लीट नहीं हो पाया लास्ट तक इट्स जस्ट कि तुमको जस्ट यू बहुत एक्स्ट्रा स्लॉट्स रहेंगे तुम्हारे पास जस्ट फिल कर देना वो मतलब यूज कर लेना प्रॉपर वो 50 कंपनी का स्लॉट एंड यू नेवर नो मतलब यू आर नॉट प्रिपेयर्ड ऐसा यू नेवर नो कि तुम डीएस के लिए प्रिपेयर करो तुम डीए में चले जाओ या डीए के लिए प्रिपेयर करो तुम डीएस प्रोफाइल में चले जाओ इट्स समवेयर सेम जैसे स्नेहा ने बोला कि परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कैसे तुम परफॉर्म करोगे एंड इट्स along the same line somewhere so don't hesitate to fill it out बस We have one more question in chat, like ML engineer profile के लिए what skills are required? Sorry, can you repeat again? Yeah. Like this question is asked, like what skills are required for ML engineer? What concepts are required? What concepts are required for skills? अच्छा ओके तो फॉर एमएल प्रोफाइल इट्स अ बिट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है चीजें क्योंकि मेरा एमएल प्रोफाइल था तो मतलब जो मेरा प्लेसमेंट लगा वो एमएल ही था तो काइंड ऑफ थोड़ा सा इट्स इफ अनटिल अनलेस यू आर एक्चुअली इनसाइड द फील्ड ऑफ एमएल तो आई वुडंट सजेस्ट कि अभी तुम ज्यादा डीप में जाओ क्योंकि एमएल का थोड़ा ये था कि जैसे मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताता हूँ इट वेंट क्वाइट डीप इनटू एनएलपी एंड उन्होंने काफी एलएलएम ट्रांसफॉर्मर्स जो तुमने सुने होंगे चैट जीपीटी मॉडल जैसे काम करता है किस चीज पे काम करता है कैसे काम करता है एग्जैक्टली दे आस्क्ड मी वेरी डिटेल टेक्निकल क्वेश्चन सो एमएल प्रोफाइल्स थोड़े से हैवी हो जाते हैं एमएल पे वो लाइक जैसे डीए या डीएस हो गया तो उन लोग थोड़ा सा थोड़ा सा बिजनेस साइड भी देखेंगे थोड़ा सा तुम्हारा थोड़ा सा तुम्हारा कोडिंग या फिर सीक्वल या गेस्टिमेट्स केस स्टडीज थोड़ा देखते हैं बट मेरे में काफी इट वाज टेक्निकल चीज काफी ज्यादा उनको उन्होंने बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस काफी कम पूछे मेरे से सीक्वल बहुत कम पूछा उन्होंने मुझसे दे वर वेरी मच डीप टेक्निकल चीजें थी एंड until unless तुम काफी प्रिपेयर्ड हो इट वुड बी अ बिट हार्ड टू मतलब टेक आउट एमएल तो इफ यू आर सीरियसली इनटू इट तो आई वुड सजेस्ट कि कीप डूइंग द मतलब जितना तुम हो सकता है एक्सप्लोर करो उस चीज को इफ यू आर ऑलरेडी इनटू इट अगर तुम अभी सोच रहे हो कि एमएल प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर करूंगा करो तुम कोई नहीं रोक रहा है द थिंग इज कि हाँ मतलब टाइम कम एफिशिएंसी कम है बट ऑब्वियसली मतलब कहीं ना लाइक यू नेवर नो कहाँ काम आ जाए वो तो सीखना इज ऑलवेज नॉलेज इज ऑलवेज तो आई जस्ट सजेस्ट कि मतलब
थोड़ा थोड़ा करो, बट आई वुड मतलब स्टिल से कि अगर तुम न्यू हो एमएल फील्ड में तो अभी तो बिल्कुल मत जाओ एमएल वाले चीज में। एंड इफ यू आर ऑलरेडी इनटू इट तो जस्ट गो एंड सर्च द थिंग्स कि एनएलपी में कैसे काम करता है, एलएलएम्स कैसे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर्स कैसे काम करता है एग्जैक्टली, एंड क्या इनका स्ट्रक्चर रहता है, कैसे वो मतलब मैथमेटिकल चीजें क्या लग रही है उनमें, प्रोबेबिलिटी कैसे यूज कर रहे हैं वो लोग। तो वो थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें देखो, क्योंकि एमएल में थोड़े कंसेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछे जाते हैं, इंटरव्यूज हो या टेस्ट हो या ऐसे इस टाइप से। बाकी या वही है। Another question is there: does any ML coding related questions are asked in DS interview? Where am I audible? You are audible. Yeah, what was the question? Does any ML coding related questions are asked in DS interview? Yeah, it is asked. Means in Tiger Analytics also the first round was related to DSA only, and I was given highlights. The first round was related to DSA. So many companies are there. Their first round would be DSA itself, and that won't be much. Depends from company to company what kind of question. Like in high labs they ask a question related to stimulation, like go around the maze, go like a snake, or go like ladder or something like that. And for Tiger it was very simple questions like switch the numbers, or uh, code related to recursion. वैसे टाइगर एनालिटिक्स ही थी ना जो एसडी रेजियो में देख के लोगों को भगा दे रही थी। Yeah, means they were looking for genuine people and little bit of probability knowledge, and they were looking at coding stuffs. देखो मतलब ये क्लैरिटी रखो कि डेटा साइंस का प्रिपेयर कर रहे हो या डेटा एनालिटिक्स का प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज इंटरव्यू प्रोसेस दोनों का बहुत अलग और प्रिपरेशन भी काफी हद तक अलग ही होता है। तो डेटा साइंस के बहुत कम कम कंपनी आती है। सो ये क्लैरिटी रखो कि क्या प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज ये हाई टाइम है, 2 महीना ही है तुम्हारे हाथ में। Which would depend on your interest, like कहाँ तुम ज़्यादा strong हो. Sharp your X and look around everything. और एक है कि डेटा एनालिस्ट का अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू फिल आउट फॉर कंसल्टेंसी, क्योंकि कंसल्टेंट्स के यहाँ पे जो आते हैं कंपनीज, दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर, बोलते हैं एसोसिएट कंसल्टेंट होते हैं बट काइंड ऑफ एनालिस्ट वाले प्रोफाइल्स ही होते हैं। तो उनका बस ये रहता है कि डेटा एनालिस्ट वाले रेज्यूमे से आई थिंक शॉर्टलिस्ट करते ज्यादातर वो लोग। मास्टर कार्ड हो गया एंड बहुत सारे ऐसे, इंडस इनसाइट्स हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं। तो कंसल्टेंसी कंपनीज जो भी आते हैं, जो एसोसिएट कंसल्टेंट टर्म पे आते हैं, वो डेटा एनालिस्ट के लिए आते हैं। वो काइंड ऑफ उनका काम डेटा एनालिस्ट वाला ही रहता है। तो डोंट फॉरगेट टू फिल आउट दोस कंपनीज। ऐसा नहीं है कि वो कंसल्टेंट है, सब प्योर कंसल्टेंसी के लिए आ रहे हैं, दे आर काइंड ऑफ एनालिस्ट वाले प्रोफाइल्स के लिए आ रहे हैं। तो उनको भी भरना मत बोलना, सारे मतलब वो वाले भरना। One more question is there: is it fine to put only machine learning in resume, or is necessary to mention ML technologies? Question is not clear actually. If he can, क्वेश्चन They are asking in बहुत chat. means he क्वेश्चन can बहुत open the ज्यादा mic. वैग है। ही इज आस्किंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट नेसेसरी है क्या? आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन कि मतलब मशीन लर्निंग की प्रोजेक्ट रिव्यू में नेसेसरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मशीन लर्निंग की प्रोजेक्ट नहीं है तो यू कैन हैव केस स्टडीज एंड एसक्यूएल का 1-2 प्रोजेक्ट। अगर मशीन लर्निंग आती सीख नहीं पाओगे तो एसक्यूएल का प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बन जाएगा एंड केस स्टडी आसानी से बना सकते, तो यू कैन गो फॉर इट। आई मीन May you please look into the chats? They are asking questions there.
हाँ, तुमको ये जो बोला है, आई थिंक वेंकटेश है, ये सेइंग आई मीन नॉट लाइक डीएसए रिलेटेड, लाइक इम्प्लीमेंटिंग फ्रॉम साइकिट लर्न इम्प्लीमेंटिंग द कोड ऑफ एमएल एल्गोस। हाँ श्योरली वो तुमको यू हैव टू लर्न, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेस्ट में भी पूछा जाता है इसका फंक्शंस, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये तो यू हैव टू नो इट, क्योंकि ये बेसिक्स है। एंड इसके जस्ट ये पढ़ के जाना कि ये कैसे यूज हो रहा है, एक्चुअली कहाँ कैसे यूज हो रहा है, साइकिट क्या कर रहा है, बस इतना यू विल हैव मोर देन एनफ। एंड हाँ, थोड़ा सा बेसिक यू विल हैव टू नो टू राइट, क्योंकि ऐसा होता है कुछ कुछ इंटरव्यूज में मुझे अभी भी याद है, कुछ कंपनीज याद नहीं आ रही मुझे, बस कुछ इंटरव्यूज में दे लिटरली टेल यू टू मतलब इम्प्लीमेंट इट, मतलब दे विल टेल यू गिव यू दिस थिंग कि ऐसा ऐसा डाटा है, ये थोड़ा मतलब फिल्टर्ड नहीं है, अनफिल्टर्ड डाटा है, इसको तुम फिल्टर करके दो। कैसे दोगे तुम फिल्टर करके? तो यू विल हैव टू यूज द लाइब्रेरीज, पांडास यूज करना पड़ेगा, नंपा यूज करना पड़ेगा, उसके बिना तो तुम फिल्टर नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली तुमको थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि कैसे काम करते हैं, और कॉन्सेप्चुअली समझना चाहिए कि क्या है, क्योंकि टेस्ट में कभी पूछ लेते हैं, और बेस ज्यादातर इंटरव्यूज में थोड़ा थोड़ा पूछ लेते हैं वो चीज, तो वो तो थोड़ा आना चाहिए मतलब। Hello, am I audible? Hello. Yes. यस मोहित। भैया मुझे पूछना था लाइक कि जैसे सितंबर एंड एंड अक्टूबर स्टार्ट से प्लेसमेंट के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी लाइक फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, एंड एक टेस्ट कितने लाइक टाइम ड्यूरेशन का होता है, एंड उसमें लाइक कितने क्वेश्चंस आते हैं, और कितने क्वेश्चंस आते हैं आप उसमें कितने अटेम्प्ट करते हो जिससे आपकी शॉर्टलिस्ट आ जाए, काइंड ऑफ लाइक Full tip. कितने क्वेश्चंस आप एक्यूरेटली अगर करेक्ट करो तो कितने में आपकी शॉर्टलिस्ट आ सकती है, पेपर का ड्यूरेशन कितना रहता है, वगैरह वगैरह स्टफ। It would depend from company to company and what they are looking for. Means sometimes तुमको लगेगा सबसे बेस्ट परफॉर्म कर लिया टेस्ट में, नाउ मेरी शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी. It won't happen like that. कुछ और ही हो रहा होगा. So it depends. Even the duration, like there was one test in which means they kept the test for 2.5 hours. Also that during night time, and sometime it's in early morning at 5 or 6 a.m. And sometimes you have to give 4 to 6 tests maybe in a one day, and sometimes there would be nothing. So it will also depend from, like in our time there was situation like recession, and the companies were relatively lesser. So during the end times, the companies which came for the test were crowded, too much crowded. But for you the case could be different. And so yeah, it's totally depends like how the things would be at what criteria they would take. Means sometimes even if you will solve the coding question, they wouldn't take you, maybe they were only seeing for other two stuff. So internally the company is looking for something and they are not revealing it, and based on that they do the shortlist and other stuffs. Does it answer? ओके दीदी, या दीदी, थैंक यू सो मच। और एक चीज है कि कुछ कुछ टेस्ट में, जैसे आई थिंक मास्टर कार्ड था, और कुछ कुछ टेस्ट था जहाँ पे ये एक्सेल भी था आई थिंक काइंड ऑफ, कि दे लुक आउट फॉर ये चीज कि तुम ऐसा मत करना कि अगर एप्टीट्यूड में 3 सेक्शन आ रहे हैं, जैसे वर्बल आ रहा है और एलआरडीआई आ रहा है और अपना क्वांट आ रहा है, ठीक है, ये 3 टॉपिक्स आते हैं जनरली एप्टीट्यूड में, तो डोंट डू दिस थिंग कि तुम एक ही सेक्शन को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो एंड फिर तुम दूसरा सेक्शन छोड़ दे रहे हो, क्योंकि जनरली वो थोड़ा वो कट ऑफ रखते हैं वो कुछ कुछ कंपनी सेक्शन वाइज। तो अगर तुम एक सेक्शन में थोड़ा खराब कर दोगे तो ऐसा होता है कि मतलब कुछ कंपनीज रखते हैं वो सेट, तो उसके हिसाब से तुम्हारा शॉर्टलिस्ट का चांसेस कम हो सकता है। तो जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी सेक्शन। अगर तुम मतलब इट्स अ बैटल अगेंस्ट टाइम ना, तो बेसिकली डोंट गेट स्टक टू एनी क्वेश्चन, ऐसा तुमको लग रहा है क्वांट में कहीं फंस गए हो तुम, तो जस्ट स्किप इट फॉर द लेटर पार्ट। जल्दी जल्दी जितना हो सकता है कीप अटेम्प्टिंग फॉर एवरी सेक्शन एंड ट्राई टू गिव द मैक्सिमम आउटपुट, वही है। ओके भैया।
हेलो भैया। भैया सीपीआई का कितना इफेक्ट पड़ता है? अगर 6.5 सीपीआई हो तो कितनी कंपनीज खुलती है डीए के लिए? जब हॉनेस्टली बोले हमारे टाइम दिक्कत तो आई थी कम सीपीआई में. इट्स द ट्रुथ मीन्स. Right. देखो मतलब इसका तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अभी तुम सिर्फ तुम्हारी सीपीआई बढ़ेगी नहीं, तुम्हारे हाथ में अप्लाई करना। यू सी की मतलब तुम्हारे कौन से स्किल में तुम अच्छे हो, यू कैन बीट द कंपटीशन। एप्टीट्यूड या फिर एसक्यूएल, जो कंपनी एप्टीट्यूड एंड एसक्यूएल पूछती है, यू कैन आल्सो नो कि मतलब कौन सी कंपनी क्या पूछती है, क्योंकि कंपनी का जो स्टाइल होता है क्वेश्चंस का वो चेंज नहीं होता है हर साल। यू कैन आस्क योर सीनियर्स कि मतलब ये कंपनी क्या पूछती है, अप्लाई फॉर दैट जिसमें तुम स्ट्रांग हो। अगर अगर होता है तो होता है, अगर नहीं होता है देन आल्सो मतलब ये तो बिगिनिंग है, कॉलेज ऑफ कैंपस ट्राई करना। बट ये अभी मत सोचो कि सीपीआई कम है। यू आर गुड, यू आर गुड एट सम स्किल्स, उसके ऊपर फोकस करो। आई वुड से कि वैसे आई वुड से कि डोंट लूज हार्ट, क्योंकि ये होता है कि तुम मतलब मान लो तुम्हारा एक या दो ही शॉर्टलिस्ट आए, जो ऐसे एक दो कंपनीज मान लेते हैं किस्मत बहुत खराब रहा, तुमको इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट दो या एक ही मिल रहा है। सो मेक श्योर कि तुम उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर तुम्हारे लिए एडवांटेज है ये, क्योंकि तुमको इंटरव्यूज थोड़े रेस्ट्रिक्टेड रहेंगे बाकियों से। तो तुम्हारे पास मान लो अगर दो तीन कंपनीज आ रहे जो खुल रहे तुम्हारे लिए, या फिर मोर ज्यादा खुलेंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू फॉर रेफरेंस कि दो कंपनी आ रहे, शॉर्टलिस्ट किया तुमको, तुमने टेस्ट निकाला, इंटरव्यू दिया, तुमने इंटरव्यू के लिए तुम रेडी हुए, तो तुम्हारे पास दो इंटरव्यूज है, तुमको पता है ये दोनों चीज दो ही है मेरे पास जो है। तो यू विल बी मोर फोकस ऑन दैट थिंग कि तुमको ये निकाल, अनलेस लाइक सम पीपल कुछ किसी के पास कंसल्टेंसी भी होगा, डेटा भी होगा, कुछ एसडी भी होगा, तो यू विल हैव मोर टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यूज। तो यही है कि जो भी होगा, जो भी तुम्हारे लाइक जो भी तुमको हाथ में आ रहा है, जो भी कंपनी तुम्हारे लिए खुल रहा है, जस्ट गिव योर बेस्ट। डोंट ये मत सोचो कि सीजीपीए बहुत कम है, क्या करूं मैं, ये सब मत सोचो। जस्ट गिव योर बेस्ट. ये अगर इंटरव्यू अच्छा आता है तो कंपनी सीपीआई को नहीं दिखती है क्या फिर? अगर इंटरव्यू अच्छा जा रहा है तो? It depends like it कंपनी depends के from ऊपर निर्भर company to करता है, बट इंटरव्यू अच्छा। अगर देखो यार, तुम मेरे को अगर इम्प्रेस कर पा रहे हो अपनी इंटरव्यू स्किल से, तो मैं क्यों तुम्हारा सीपीआई देखूंगा, बताओ। हाँ। and आप स्किल्स पे आप फोकस करो, सीजीपीए तो आप वो तो गया, मतलब दैट इज नॉट इन योर हैंड्स, तो बाकी आप स्किल पे फोकस करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यू मे इम्प्रेस दिस, ऐसा हो सकता है कि इतना इम्प्रेस कर रहे हो इंटरव्यू, क्योंकि 9 सीजीपीए वाले को भी ना मिले, तुमको मिल जाए, सो नेवर नो। but prepare some question means maybe you can get some HR or such question like your CPI is low, maybe some question related to it. So form some positive answer related to it. सीनियर से बात करना बस, और क्या, मतलब व्हाट कैन बी द राइट आंसर, बात करो। इट्स ओनली अबाउट यू, मतलब आप कितना अच्छा कन्विंस कर पाते हो। EQ, इमोशनल क्वोशेंट। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? If audience are done with questions, we will like to take फाइनल some ईयर से कितने questions लोग from हैं अभी? the. आउट ऑफ 30 हाउ मेनी आर फ्रॉम फाइनल ईयर? You have to answer in such a way means if जो भी your uh, I'm answering to Sovik like core to DADS means in core also there is a analysis required like you observe the data set and fetch out some insights. So कुछ कहानियां बना सकते हो कि या मीन्स मैंने दोस्तों से बात की, ये सब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम मेड फॉर दिस रोल ओनली. Keep पर्सनल this. स्टोरी बनाना,
हाँ, एक पर्सनल स्टोरी बनाना जो मतलब रिलेट कर पाए लोग, एंड बताना कि कोर में भी तो लैब्स में भी तुम लोग यही तो करते हो, मतलब काफी रिलेटेड होता है काम, तो यू कैन जस्ट से कि आई व्हेन आई लाइक स्विच दिस प्रोफाइल आई सॉ कि देयर इज एन इंटरेस्ट दैट इज अलाइन विद लाइक व्हाटएवर एमएल इज देयर। एक कहानी, पर्सनल कहानी बना देना जो तुमको रिलेट कर पाए तुम्हारे इंटरव्यू के साथ, क्योंकि ये एचआर क्वेश्चंस में पूछेंगे तुमको सबसे ज्यादा, तो एचआर में इट्स नॉट टेक्निकल, इट्स मोर अबाउट हाउ यू शो योर पर्सनैलिटी। तो Also means opposite is also true, means if you are preparing for DADS and if your willingness and all those are not completing, do apply in core as well, means it can help. Don't uh, don't डोंट lose लीव the योर chance. 50 वाला, Hmm. 50 वाला तो बिल्कुल मत छोड़ना, एक भी कंपनी छोड़ना मत, 49 48 तक मत छोड़ना, 50 पूरा भर देना। यूज इट, डोंट, मतलब दिया है 50 तो दिया है, मतलब यू विल हैव टू यूज इट, ठीक है। पता नहीं वेयर यू मे गो, सो यही होता लास्ट में 3-4 बढ़ा भी देते हैं। है। हाँ, बड़ा हमारे टाइम 53 या 55 कुछ कर दिया था, मेरे कम पड़ गए थे। हाँ, I was applying for whichever company I was seeing. हाँ, वो तो मतलब वो हो गया, बट Yeah. यूज इट, पूरा यूज कर लेना, कोई भी मत छोड़ना। बट बी स्पेसिफिक। अभी मेरा ये था कि मैं स्पेसिफिक नहीं था, तो बाद में मेरे को बहुत दिक्कत आ गई कि हर एक टाइप का मेरे पास इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट है, बट मैं कोई भी ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो उसका प्रिपेयर रखना। 3 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो हर्षा, हैव यू एनी क्वेश्चंस? She asked means to mention the specific topics also, like better रहेगा, but if you will just write ML, maybe that would be too open ended for interviewer to grill upon that. So you can mention in resume कि मुझे बस इन topics से सवाल पूछो, don't go beyond this. So it's better to write some specific technologies in which you have good grasp. Like random मैं forest is easy to learn and good to, अगर डेप्थ में भी जाए तो you can tackle. वैसे ये है कि इंटरव्यूज में यू नीड टू नो हाउ टू डाइवर्ट, ये मुझे भी काफी लेट पता चला कि यू नीड टू लर्न हाउ टू डाइवर्ट इन द इंटरव्यूज, क्योंकि ये एक स्किल है, यू विल हैव टू मतलब डोंट गिव एनी कीवर्ड जो तुम श्योर नहीं हो इंटरव्यू में, ओके ऐसा कोई भी कीवर्ड मत देना है, कुछ भी टॉपिक का हो, सीक्वल हो, एमएल हो, कोई भी ऐसा कीवर्ड मत देना जो उससे ना फिर वो पूछने लग जाए और तुम ना बोल पाओ फिर, क्योंकि ठीक है वो यू कैन से कि आई विल टच ऑन ये सब वो सब, बट वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऑलवेज बी श्योर कि तुम क्या बोल रहे हो, थोड़ा टाइम ले लो, यू कैन ऑलवेज टेक योर टाइम इन इंटरव्यू, कि इंटरव्यू ने कुछ पूछ दिया, यू ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको जल्दी जल्दी आंसर देना, अब भी देना है तुमको आंसर, थोड़ा सा टाइम ले लो, जस्ट से योर इंटरव्यू कि आई एम टेकिंग अ मोमेंट, आई नीड अ मिनट टू लाइक ऑर्गेनाइज माई थॉट्स, टाइम ले लो, अगर तुमको लग रहा है कि तुमको थोड़ा कुछ भी निकल सकता है मुंह से, तो टाइम लो और गिन चुन के कीवर्ड बोलना, जो तुमको लगता है तुम्हारा स्ट्रेंथ है वही कीवर्ड्स बोलना, उसके बाहर मत जाना, क्योंकि इंटरव्यू फिर बहुत हेवायर हो जाएगा, बहुत कहीं भी चला जाएगा, फिर वो इंटरव्यू फिर इट विल बी अ बिट लेस, मतलब चांसेस कम हो जाएंगे फिर थोड़े। एंड हाँ, जीडी का तो यही है कि हाँ, इन्हें राहुल ने दे ही दिया है तुमको, राहुल भैया ने दे ही दिया है कि वीकेंड्स में, हाँ, तो यूल हैव टू डू इट, एंड प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट एंट्री का थोड़ा देख लेना अच्छे से, क्योंकि मेजरली प्रॉफिटेबिलिटी देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछते हैं वो, तो डिमांड साइड और सप्लाई साइड दो साइड होता है, तो वो दोनों साइड से कैसे सॉल्व करना है वो देख लेना, क्योंकि केस स्टडीज में अक्सर ये होता है कि डिमांड साइड से तुमने बता दिया, व्हेन यू विल गो टू केस स्टडीज यू विल नो कि डिमांड साइड से होता है, सप्लाई साइड से होता है, तो कभी कभार ऐसे बोल देते हैं कि मुझे डिमांड साइड से नहीं चाहिए, मुझे सप्लाई साइड से चाहिए, डिमांड साइड से कोई भी बोल देगा, ऐसे बोलते हैं कभी कभी इंटरव्यूज में, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम बोथ साइड, ऐसा नहीं है कि तुम केस स्टडीज में जाओगे, प्रोफिटेबिलिटी मार्केट एंट्री मिलेगा, फिर तुम डिमांड साइड सप्लाई साइड से सॉल्व करोगे, टॉप डाउन बॉटम डाउन ऐसे होते हैं कुछ कुछ चीजें टर्म्स, जो तुम अभी सर्च करोगे तो तुमको मिलेगा, तो उसमें ट्राई टू बी थorough विद एवरीथिंग, क्योंकि इंटरव्यू में काफी वो, एंड
आई थिंक एनालिस्ट में ज्यादा नहीं करते हैं वो चीज, केस स्टडीज वाला चीज, बट कंसल्टेंट में अगर तुम जा रहे हो, अगर तुम भर रहे हो, तुम्हारा शॉर्टलिस्ट आ गया इंटरव्यू में, तो मेक श्योर कि तुम ये करो। बाकी नहीं तो जरूरी नहीं है, इतना इतना जरूरी नहीं है। केस स्टडीज में प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट एंट्री थोड़ा देख लो तो ठीक है। एंड जीडीज में आई थिंक, जीडीज में ये होता है कि मेक श्योर कि तुम स्टार्टिंग का जो दो पॉइंट्स होते हैं जिसमें तुम्हारा वेटेज होता है जीडी में, कि कौन स्टार्ट कर रहा है, कौन एंड कर रहा है, और कौन डायरेक्ट कर रहा है इंटरव्यू में। जीडी इज नॉट अ फिश मार्केट, अभी बोल रहा हूँ। कोई भसर मत करना उधर जाके कि तुमको लग रहा है कि तुमको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो तुम चिल्लाने लग जाओ, मत करना, वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जस्ट मेक श्योर कि तुम, अगर तुमको स्टार्टिंग वाला नहीं मिला तो मेक श्योर कि तुम नोट डाउन करो सबका पॉइंट्स, ठीक है, जो कोई कुछ भी अच्छा लगा पॉइंट्स मेक नोट डाउन करो। एंड बीच बीच में ऐसे इंटरेक्शन भी करो, ठीक है, तुमको हर किसी को पहले ये करेंगे, कंपनी हर किसी को बोलने का मौका देंगे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया, फिर सबको बोलने का मौका देंगे और फिर एंड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन अगर किसी ने बोल दिया, मान लो वो बोनस चला गया तुम्हारे हाथ से, तो तुम नोट डाउन करो सब चीजें। एंड आई थिंक तुमको एक बार बोलने का मौका मिलेगा, फिर भी उसके बाद भी तुम इंटरेक्ट कर सकते हो। रिमेंबर, इट्स एन इंटरेक्शन, डिबेट नहीं है, डिबेट मत करना उसमें। इंटरेक्शन है, उसमें अच्छे से बात करना, एंड मतलब पॉइंट्स को वो करना कि जस्टिफाई करना एक दूसरे का। एंड उसके बाद एंडिंग आता है। अगर तुम स्टार्टिंग मिस कर देते हो तो एंडिंग तो बिल्कुल मत मिस करना। एंडिंग तुमने जो जो पॉइंट्स लिखे हैं, जो जो तुमने सबके अच्छे अच्छे पॉइंट्स तुमने कलेक्ट किए हैं पेपर में, नोट करते रहना वो पूरे टाइम जीडी में। उसको तुम फिर एंडिंग में ऐसे जस्ट गिव इट अवे एवरीथिंग, कि हमने ये डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया, हम ये कंक्लूजन पे आए। तो इससे ना तुम्हारा फिर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी दिखेगा, क्योंकि मोस्टली वो लीडरशिप क्वालिटी देखते हैं जीडी में। तो बिल्कुल भी भसर तो मत करना, रेदर देन दैट ट्राई करना कि थोड़ा मतलब डायरेक्ट करो तुम उसको। नहीं है। Sameer Patle, he's raising the hand. समीर पाटिल। अच्छा। तो अभी भाई तुम्हारा क्या डाउट है? If doubts are over, now Was there it any was a doubts very in informative. Google form? Means maybe they would have not come. Google form check करेंगे. All questions are covered from Google Form. I have checked it. It was a very informative session, and I am sure our audience now has a much clearer understanding of the field. Now, Even on if the after behalf of a career session counsel, they can reach out any of आफ्टर us. सेशन यू श्योरली कैन एनी टाइम, हम तीनों में से किसी को भी तुम कांटेक्ट करो, दिस ऑलवेज फ्री टू हेल्प आवर जूनियर्स। मीन्स पिछली बार मैंने मतलब on होस्ट behalf, किया था एसिंग placement, and I took contacts of every senior of regarding DA, DS, both the seniors, and I was asking the same doubt to all the seniors and was fetching out the insights throughout the placement session. So utilize us as much as possible. coming to the end, from career counsel and all our participants, I would like to extend a heartfelt thanks to all of you for your expertise and guidance, and would like to present you an e-memento.
Now, before signing off, I would request everyone to turn their cameras on for a group photo. Every participant. I would request everyone to turn on their cameras. Every participant. कर लो भाई कैमरा ऑन. इंटरव्यू कैसे फेस करोगे if you are not if you can't face the virtual meeting? और वर्चुअल इंटरव्यूज भी होंगे. हाँ Also, just suggestion like previously, some fourth year was hosting the session, and it's better if any final year student only hosts the session. He could ask better doubts and more specific to what is needed, and so he would be aware of the things also. Since our audience is not opening their cameras, I would now like to sign off. And thank you everyone for joining and for being such a great audience. Your participation made this session a success. Thank you everyone.